All of us have seen butterflies, right? And we love their beautiful colors and graceful flight. But do you know, their symmetry can be explored using trigonometric functions and plotting the points on the polar coordinate system. So let's try to explore the polar coordinate system in this video. Now, take a deep breath and relax. Now let's first understand that what is a polar coordinate system, and then we'll see how to plot a point. Okay, so here we have this ray. This ray is known as the polar axis, and here this vortex is called as pole, right? Now suppose we need to plot a point P on this polar coordinate system. Suppose this is a point P. Now we have a coordinate in rectangular coordinate system. We show the point with x comma y, right? बट इसमें फॉर जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है विल शो द पॉइंट विद r and theta. What is r here? R is the distance from the pole to the point. This distance is what we call r, right? It can be positive, it can be positive, it can be negative, or it can be zero. We'll explore this thing later on, but just keep in mind. Now this angle is theta. It can be in radian, it can be in degree, it doesn't matter, right? If we are measuring angle in the anti-clockwise direction, then the theta, we all know, we'll take it as positive. The same thing we studied in trigonometry. Whenever we measure angle in the anti-clockwise from the positive x, we'll take positive. Similarly here also. And if we take the angle in the clockwise direction like this, then this theta would be negative. So this is a basic overview of the polar coordinate system. Now let's try to plot a point on the polar coordinate system. Now let's try to locate the point 3 comma pi by 4 on the polar coordinate system. So 3 here means it is the value of r. R is the distance from the pole to the point, right? And theta is pi by 4. And since theta is positive, that means we have to measure angle in the anti-clockwise direction from the from the polar axis, right? So let me try to draw here. This is the pole here. This is the polar axis, right? This is the polar axis. Now here we have to move pi by 4 in the anti-clockwise direction like this. This is anti-clockwise direction pi by 4. And here we have this thing, array, and it will move along this direction also. But since r is positive, so we'll consider this side. Here r is 3 here, so 1, 2, 3. This point is 3. So this point would be 3 comma pi by 4. If r would have been negative, suppose if this is minus 3 pi by 4, then angle we have to move in the anti-clockwise direction pi by 4, but this time we have to move r towards this side. This is 1, 2, 3. This is minus 1, minus 2, and this is minus 3 here. So this point would be minus 3 comma pi by 4. Right, so here if r is 0, if r is 0, that means it is on the pole here. R0 means it is on the pole. Now let's take a few more examples to have a better understanding. Now let's try to locate. We'll locate 3 points. First, let the point be 2 comma 135 degrees. Okay, now this time angle is given in degrees. Now we all know that this is 0 degree. This is 90 degree here, this is 180 degree, and this is 270 degree. And if you need to write in radians, this is 0 radian, then pi by 2 radian, and then this is pi radian, and we can write 270 degree as 3 pi by 2 radian, right? Now r is 2. Clearly r is 2 here. So here we have first let us locate the angle. Angle we have 135 degrees. So 135 degrees would be here. So this would be the angle theta.
theta, this is 135 degree, right? Now r is 2. So here this is, if I draw a ray here, right? So r we have to take it as 2. So at this point, this is r is 1 here. Here this r is 2. So this point would be 2, 135 degrees, right? Now let's take one more angle. This time I'm going to take angle in radian. R this time is negative, -3, and then 3 pi by 2, right? Now let us try to locate this. Now angle is positive, that means we have to move in the anti-clockwise direction, 3 pi by 2. So 3 pi by 2 means here this angle is 3 pi by 2. So here this is the angle theta, 3 pi by 2 radian. Now since r is negative here, so this time many of you would take this ray and you will say that here r1, 2 and 3, this would be the point. But no, this point is 3, 3 pi by 2. We have given r as negative, so the ray would be in the opposite direction, in this direction, like this. Here people have many doubt, but now after watching this you don't have any doubt. Now here r is 1, r is 2 and r is 3. So this point would be -3, 3 pi by 2, right? Let's take one more angle. When both angle and r both is negative, part C we have r is also negative and the angle is also negative. Now let's try to locate this. Now angle is negative, that means we have to move in the clockwise direction from the polar axis. So this is the polar axis where theta is 0. So we have to move in this direction. So this is theta equals to minus pi by 4. And here we have to draw a ray like this. Like this. This is theta equals to pi by 4, right? But r is negative, so we have to move in this direction, like in this, not in this. Here this is r is 1 here, so actually -1 here, not 1. So this point would be -1, minus pi by 4, and this point would be 1, minus pi by 4. Now I think कि आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे कि कोई भी पॉइंट हम लोग प्लॉट कैसे करते हैं पोलर एक्सिस पे। अब बढ़ते हैं आगे। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉइंट इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसका मतलब क्या? देखो, रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या होता था, किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है। मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है। अब इसका एक्स एक्सिस देख लो, यहाँ पे कितना एक्सिस पे कहाँ पे है, मान लो ये 2 है यहाँ पे, तो 2 कॉमा, और यहाँ पे वाई एक्सिस देख लो कहाँ कट कर रहा है, तो मान लो यहाँ पे भी 2 है, तो 2, 2। इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका है, इसके अलावा आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। बट सो सपोज वी हैव दिस पॉइंट। नाउ डू यू नो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हो सकते हैं? सोचो, कमेंट करो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, कितने तरीके से हम इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ना 1, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8। आप इनफाइनाइट तरीके से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बोला इनफाइनाइट तरीका, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का इनफाइनाइट तरीका? बिल्कुल हाँ। बोला कैसे? तो मान लो ये पॉइंट है, तो ये तो एंगल हो गया थीटा, ये तो एंगल हो गया थीटा, और सपोज ये डिस्टेंस फ्रॉम द पोल इज आर। ठीक, तो पॉइंट क्या हो गया? आर कॉमा थीटा, राइट। अब अगर मैं थीटा को 2 पाई इंक्रीज कर दूं, थीटा को 2 पाई इंक्रीज कर दूं, तो ये यहां से 2 पाई जब मैं इंक्रीज करूंगा, आर को सेम रखूं, तो ये वापस मैं यहीं पे आ जाऊंगा, एंगल वहीं आ जाएगा। आर को मैंने सेम रखा, बस थीटा को मैंने 2 पाई इंक्रीज कर दिया, तो वापस वही पॉइंट आ जाएगा। फिर से 2 पाई इंक्रीज कर दिया, फिर वही पॉइंट, फिर से 2 पाई इंक्रीज कर दिया, फिर मतलब 2 पाई इंक्रीज करते जाओ, आर को सेम रखो, आर को चेंज मत करना, सिर्फ थीटा को चेंज करो 2 पाई से, वापस वही पॉइंट आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया। एक और तरीका है, इस बार
थीटा भी हम चेंज करेंगे और आर भी चेंज करेंगे, बट पॉइंट वही रहेगा। सोचो ऐसा खासा, मतलब आर को भी चेंज कर दिया, थीटा को भी चेंज कर दिया, बट फिर भी पॉइंट वही रहा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप सोचो और कमेंट करने को, कमेंट में लिखो कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया, अगर आपको आंसर आता है तो देखो अब मैं कैसे करूंगा इसको। आर को तो मैंने कर दिया माइनस आर, और थीटा को कर दिया थीटा प्लस पाई। थीटा प्लस पाई मतलब कि आप कौन से वाले साइड आ गए, थीटा प्लस पाई का मतलब आप, ये थीटा है और ये पाई ऐड किया तो मतलब आप यहां पहुंच गए। तो मतलब बेसिकली आपका एंगल ये हो गया, अब ये एंगल हो गया थीटा प्लस पाई। दिस एंगल ये पूरा अगर मैं ये पोलर एक्सिस से देखूं तो ये थीटा प्लस पाई हो गया। अच्छा आर जो था यहाँ पे, अब हमने कर दिया आर है माइनस आर, तो हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, राइट साइड की तरफ, इस तरफ। तो आर वापस ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, माइनस आर कोमा थीटा प्लस पाई। अगर प्लस आर होता तो हम इधर इधर जाते हैं प्लस आर की तरफ, बट क्योंकि माइनस आर है तो आप इस तरफ जाएंगे ऑपोजिट। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आर और कॉमा थीटा प्लस पाई। मतलब सेम पॉइंट को हम आर कोमा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर कोमा थीटा प्लस 2 पाई ऐड करते रहो वो भी कर सकते हैं, या आर को भी चेंज कर दो, माइनस आर कर दो, बट थीटा को पाई से इंक्रीज कर दो, तो वापस वही पॉइंट है। और इसके बाद आप फिर इसको 2 पाई इंक्रीज करते रहो, फिर वही पॉइंट आएगा। घुमा फिरा के बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक पॉइंट को इनफाइनाइट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये बेसिक है। अगर आप यहाँ पे समझ गए तो आगे जो हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले, जो बटरफ्लाई का जो मैंने ग्राफ दिखाया था, वो ग्राफ भी आप खुद अपने हाथों से, अपने ही प्यारे प्यारे हाथों से खुद ड्रॉ कर पाओगे इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज बेसिक्स इफेक्टिवली। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं आगे। नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर। सपोज कि हमारे पास ये पॉइंट है 2, π/3 एंड वी नीड टू टेल कि इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के और कितने तरीके हो सकते हैं, और हमें 3 पार्ट, वी आर गिवन विद 3 पार्ट्स हियर। फर्स्ट हमें कुछ इस तरीके से बताना है कि आर जो है वो पॉजिटिव रहे और जो एंगल है वो 2 पाई और 4 पाई के बीच में रहे। तब हम इसी सेम पॉइंट को 2, π/3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जस्ट नाउ वी स्टडीड, सपोज दिस इज द point we have 2, π/3. Now r should be positive here, so r will take it as it is 2, and angle should be between 2 पाई and 4 पाई। तो अगर मैं π/3 में 2 पाई ऐड कर दूं तो पॉइंट क्या बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 2, 7 π/3। so this point and this point will be the same on the polar coordinate system. नाउ अब एक और मैं लेता हूं बी पार्ट। इसमें हम कह रहे हैं कि आर अब नेगेटिव हो जाए, आर नेगेटिव हो जाए और जो थीटा हो वो इसके बीच में रहे। तब क्या आप सेम पॉइंट को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो बताइए कैसे, इस रेंज में कैसे कर सकते हैं, तो अभी कर लेते हैं। तो वी हैव द पॉइंट 2, π/3। नाउ हियर आर शुड बी नेगेटिव, तो आर को मैं ले लूंगा -2। बट देखो अब जो है, जो मैं एंगल को जो इंक्रीज करूंगा वो पाई से इंक्रीज करूंगा, π/3 प्लस पाई। अब बोले यहाँ पे शायद आपको थोड़ी दिक्कत आ जाए। मान लो ये पॉइंट था π/3 होता है ना एंगल, ये होता है एंगल π/3, और यहाँ पे आर मान लो 2 है, तो ये पॉइंट हो गया 2, π/3। बट अब अगर मैं एंगल को पाई से इंक्रीज कर दूं, अगर मैं पाई से इंक्रीज कर रहा हूं इसका मतलब मैं यहां पहुंच गया, बट हमें पॉइंट सेम रखना है। तो हम r की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे तो हमें इस तरफ मूव करना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, वापस वही पॉइंट आ जाएगा। तो इसी पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, -2, एंगल पाई से इंक्रीज किया तो ये हो जाएगा 4 π/3। तो सेम पॉइंट को, मतलब 2, 2 π/3 को ही मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, -2, 4 π/3 से, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब एक और तरीका है, मतलब एक क्वेश्चन और है, इसी में एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, वो आपको खुद से करना है। यू हैव टू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो आर है, आर तो पॉजिटिव ही रहे, आर चेंज ना हो, बट जो एंगल है, एंगल होना चाहिए बिटवीन -2 पाई टू 0। तब बताइए इस पॉइंट को हम ऐसे, इस वैल्यूज के लिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेम पॉइंट को। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है, and we will move forward.
Now, we're going to discuss that what is the relation or the connection between polar and the rectangular coordinate system. मतलब हम एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ताकि इन फ्यूचर हम कन्वर्ट कर पाएँ. अगर हमें कोऑर्डिनेट हमें रेक्टेंगुलर में दे रखे हो तो हम उसको पोलर में कन्वर्ट कर पाएँ, या हमें इक्वेशन दे रखी हो पोलर में तो हमें उसको रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट कर पाएँ. तो एक बार पहले हम कनेक्शन समझ लेते हैं एंड देन विल डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो. सो पोलर में क्या होता है वो हमें मालूम है कि दिस इज द पोल हेयर पोल जो नॉट द पोल दिस पोलर एक्सिस और जो एक्स एक्सिस है ये आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं. मतलब ये हम एक्स एक्सिस लेते हैं तो पोलर एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं. दिस इज द पोलर एक्सिस एंड दिस इज द पोल सॉरी एक्स एक्सिस. अच्छा, पोल जो है ये वाला जो होता है ये जो पोल इसको हम बोलते हैं पोल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो यहाँ पे ओरिजिन और पोल आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं. तो ये तो हो गया दोनों के बीच में जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं कैसे. एंड देन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस होता है ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. तो ये चीज़ें हो गई. अच्छा, अब हमने मान लो एक पॉइंट हमने लिया, ये वाला पॉइंट जैसा आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट पी हमने मार्क किया यहाँ पे. अब इस पॉइंट पी को हमें पोलर में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करते हैं, आर कोमा थीटा से. अभी हमने जस्ट देखा. अच्छा, रेक्टेंगुलर में कैसे करते हैं, पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं देन वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, यही तरीका है. तो यहाँ पे बेसिकली क्या आर कोमा थीटा लिखते हैं और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एक्स कोमा थीटा. तो यहाँ से ये मत बोल देना कि आर एक्स के बराबर हो गया और वाई थीटा के बराबर. नहीं, अभी ये चीज़ नहीं है. वो अभी हम देखेंगे आर किसके बराबर है वाई किसके बराबर, वो चीज़ हम देखेंगे अभी. बट हाँ, ये है कि पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आर कोमा थीटा, इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है रेक्टेंगुलर में तो एक्स कोमा थीटा. अच्छा, अब इन आर और थीटा के बीच, आर और एक्स वाई इन सब के बीच में रिलेशन कैसे निकालूं, ट्रिगोनोमेट्री जो हमने पीछे पढ़ के आए हैं. बेसिक है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है. यहाँ पे देखो हमें मालूम है अगर मैं ये इसको एक डैश 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 यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ एक्स एक्सिस से, तो जो ये होगा ये क्या अपने पास वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, और दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल हेयर. तो यहाँ से क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, वाई ओवर आर के बराबर. बोलो यार, वाई ओवर आर के बराबर होगा. तो यहाँ से जो वाई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, आर साइन थीटा. करेक्ट. ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा लिखूं तो ये क्या होगा, एक्स ओवर आर. तो यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आर कॉस थीटा. राइट. अच्छा, मैं टेंजेंट थीटा लिखना चाहूं तो एक्स और वाई के टर्म में टेंजेंट थीटा लिखना चाहूं तो वाई ओवर एक्स हो गया. एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशन जो कि हम लिख सकते हैं फ्रॉम द पाइथागोरियन थ्योरम, बिकॉज दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल सो आई कैन राइट दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के बराबर होगा. सो यहाँ पे ये तीन इक्वेशन है. एक तो ये वाली y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एक ये वाली x इक्वल्स टू आर कोसाइन थीटा, एक ये वाली टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू y ओवर x, और एक और बच गई. चार हैं, सॉरी तीन नहीं चार. तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये कनेक्शन हम बिल्ड कर पाए हैं बिटवीन द पोलर एंड द कोऑर्डिनेट बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस. राइट. यहाँ पे जो है जो ये इक्वेशन ये किसी भी क्वाड्रेंट के लिए वैलिड है. अभी हमने जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर किया ना यहाँ पे कि पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तब हमें, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं कि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए लिख पा रहे हैं. अभी किसी भी क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये सारी की चारों जो ये इक्वेशंस हैं, ये जो फॉर्मूले बोल लीजिए, ये जो है ये वैलिड रहेंगे. ठीक है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं. अब हम एक पोलर कोऑर्डिनेट लेंगे, उसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे और उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे. तो पॉइंट मैं ले रहा हूँ पोलर कोऑर्डिनेट में. सो पॉइंट वी हैव 2,3 पाई बाई 2. तो मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, आर इज 2 हेयर एंड थीटा कितना आ गया, थीटा इज 3 पाई बाई 2. अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो दिस इज जो ये होता था पोलर एक्सिस होता था, और यहाँ पे थीटा इज 0 हेयर और यहाँ पे थीटा कितना होता था 3 पाई बाई 2. मतलब एंगल तो हमारे पास ये हो गया. करेक्ट. और आर कितना है 2. मान लो ये यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, अगर मैं आर कोमा थीटा के वे में रिप्रेजेंट करूँ तो ये 2,3 पाई बाई 2 हो जाएगा. अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
तो हमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, जो x जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, r cos थीटा होता है, और y जो होता है वो क्या होता है, r sin थीटा होता है। करेक्ट। तो r यहाँ पे है 2, कोसाइन 3 पाई बाई 2। अच्छा, कोसाइन 3 पाई बाई 2 क्या होता है, दुनिया जानती है ये जीरो होता है, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। r है 2, साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या होता है, -1, तो ये कितना आ गया, -2 हेयर। तो अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस लूँ, ये नेगेटिव वाई एक्सिस लूँ, और ये दिस इज पॉजिटिव x पॉजिटिव y लूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, x कोऑर्डिनेट तो जीरो है, तो ये y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ पे 1 2, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, -2। करेक्ट। तो हमने कन्वर्ट करना सीखा और रिप्रेजेंट करना भी सीखा। अच्छा, एक पॉइंट और लेते हैं, चलिए। तो अब मैं पॉइंट ले रहा हूँ -8, π/3। ओके, एंगल तो π/3, तो एंगल π/3 तो मतलब ये हो गया एंगल π/3, π/3 मतलब 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं रे ड्रॉ करूँ लाइक दिस, तो क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हम बैकवर्ड साइड में जाना पड़ेगा, इस तरफ जाना पड़ेगा, तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा इस तरफ भी, ये हो गया। अच्छा, r जो है वो -8 है, तो मैं काउंट करूंगा यहाँ पे 1 -1 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। मान लो यहाँ पे आ गया -8 हुआ, तो ये वाला पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट वुड बी -8, π/3। तो ये तो हो गया पोलर में। बट अब अगर हमें इसको रेक्टेंगुलर में रिप्रेजेंट करना है, तो पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे r कितना है, r है -8, एंड जो थीटा है वो कितना है, π/3 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो x जो होगा वो क्या होगा, r कोसाइन थीटा। सो r की वैल्यू होगी -8 कोसाइन π/3। तो r कोसाइन π/3, अच्छा -8 तो एज इट इज। कोसाइन π/3 क्या होता है, कोसाइन π/3 का मतलब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज व्हाट, 1/2। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 1/2 से, तो ये कितना आ जाएगा, -4। तो x की वैल्यू आ गई -4, x कोऑर्डिनेट आ गया -4। y अगर लिखना चाहूँ तो r साइन थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा r इज -8 हेयर, साइन थीटा इज π/3 हेयर। सो -8 इंटू, अच्छा साइन π/3 क्या होता है, √3/2। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4 √3 आ जाएगी। तो चलिए एक पॉइंट लेते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। अच्छा सॉरी, रिप्रेजेंट तो हम कर देंगे रेक्टेंगुलर, बट हमें इसको कन्वर्ट भी करना है पोलर में और उसको रिप्रेजेंट। ओके, तो पहले हम मैं इसको x नेगेटिव है तो मतलब y पॉजिटिव है, तो ये हो गया 1.3 की वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट आ गया। अच्छा नेक्स्ट, अब हमें इसको पोलर में कन्वर्ट करना है। तो पहले r की वैल्यू निकालो, पोल से की दूरी कितनी होगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया, r की वैल्यू 2 होगी। अच्छा, थीटा कैसे निकालूं, y ओवर x, तो y कितना है, और x कितना है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर है। अच्छा, हमें मालूम है कि पहले हम थीटा अगर पॉजिटिव मतलब मोड पॉजिटिव है, तो ये कितना हो जाएगा, √3 कहाँ पे होती है, पाई बाय, यहाँ से जो थीटा का जो रेफरेंस एंगल जो आएगा कितना आ गया, पाई बाय, सॉरी पाई बाय, अच्छा अब देखो, अब जो टेंजेंट जो थीटा है वो नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, यहाँ पे, क्योंकि हमें मालूम है क्वाड्रेंट में हमारे पास सेकंड, यहाँ पे जो रेफरेंस एंगल पाई बाय,
ये वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 4 और वाई स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4/2। अच्छा आर तो 2 ही हो गया। टेंजेंट थीटा, थीटा यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, टेंजेंट थीटा निकालने के से पहले हम पहले प्लॉट कर लेते हैं इस पॉइंट को। सपोज दिस इज द अपना पास ये वाई एक्सिस हो गया और ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। दिस इज द एक्स एक्सिस हेयर, दिस इज द वाई एक्सिस हेयर। नाउ अगर मैं पहले इस पॉइंट को प्लॉट करूं तो ये -1 देन -2, तो जो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, -2, 0 हो गया रेक्टेंगुलर में। बट अब अगर मैं इस पॉइंट को पोलर में पोलर में शो करना है तो वो कैसे करेंगे, आर तो आ गया 2, ठीक है। अच्छा थीटा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये थीटा अगर मैं सिर्फ ना निकालूं, सिर्फ इस फिगर से भी देखूं तो थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है, पाई आ रहा है। यहाँ से निकाल के ले लेते हैं, tan थीटा कितना, वाई ओवर एक्स तो y कितना है यहाँ पे 0 है, x कितना है -2 है। अच्छा टेंजेंट, अब अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। सो टेंजेंट थीटा अगर 0 है तो 0 कहाँ पे होता है, टेंजेंट पाई पे होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया, पाई, तो ये वही आ गया। तो आप ये फिगर से भी बता सकते थे इस वाले केस में, क्योंकि ये जो एंगल है ये क्वाड्रेंटल एंगल बन गया है, तो इसमें आप फिगर देख के बता सकते हो। तो अपने पास पोलर में क्या हो गया, ये हो गया अपना 2, पाई, और रेक्टेंगुलर में ये हो गया, और रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखा दिया। थोड़ा और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी शायद आपकी। अब मूव ऑन करते हैं टू द इक्वेशंस। नाउ अब हम सीखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं इक्वेशन को फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर कोऑर्डिनेट। मतलब ये तो आपने रेक्टेंगुलर इक्वेशन में तो आपने पढ़े होंगे, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1 है, या x इक्वल्स टू 2y प्लस 4 है। मतलब ये तो रेक्टेंगुलर में हमारा इक्वेशन हमने लिख दी। बट पोलर का कहने का मतलब क्या, कि जो इक्वेशन हो वो r और थीटा के टर्म में हो, जैसे कि r इक्वल्स टू 5 ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसा हो, ये पोलर में है इक्वेशन। या r इक्वल्स टू 3 साइन थीटा हो, या r स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम कैसे इसको रेक्टेंगुलर इक्वेशंस को, जो वेरिएबल है इसको हम अगर हमें कन्वर्ट करना हो पोलर में तो वो कैसे करते हैं, वो चीज़ सीखते हैं। तो रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, x की जगह हम लिख देंगे r कोसाइन थीटा, पढ़ के आए हम पीछे अभी जस्ट, और y की जगह हम लिख देंगे r साइन थीटा, करेक्ट। थोड़ा फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो चलिए 2-3 एग्जांपल लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर होंगी। एग्जांपल नंबर 1, वी हैव द इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। इसको हमें पोलर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो x की जगह क्या लिख देंगे, r cos थीटा, y की जगह क्या लिख देंगे, r sin थीटा। ये किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर, करेक्ट। यहाँ से क्या मैं r कॉमन निकाल लूँ तो ये कितना हो जाएगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 ओवर कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा और अच्छा है, अच्छा का मतलब थोड़ा सा आपको थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो वी हैव द इक्वेशन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बाय द वे दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन वी हैव x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k and then its square equals to k square r square। यहाँ पे जो सर्कल है उसका रेडियस होगा r और जो उसका सेंटर होगा वो h, k होगा। ये मैं रेक्टेंगुलर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस केस में बात करूँ तो यहाँ पे सेंटर क्या होगा, देखो h की वैल्यू तो आ गई -1 और y k की वैल्यू आ गई 0, तो -1, 0 ये तो हो गया सेंटर। और रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा r, ये 1, रेडियस कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब मुद्दे की बात ये नहीं थी, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल इक्वेशन किसकी है, बट हमें कन्वर्ट करना है दिस इक्वेशन इनटू पोलर इक्वेशन। कैसे करेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे, r cos थीटा, देन -1 इसका होल स्क्वायर, प्लस y की जगह हम क्या लिखेंगे, r sin थीटा, एंड देन इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो,
a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 2r कोसाइन थीटा एंड देन प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इन दो टर्म को देखूं तो क्या यहाँ पे मैं आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूं? बिल्कुल निकाल लूं। तो ये क्या हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, देन माइनस 2r कॉस थीटा। अच्छा, ये जो 1 है और ये जो 1 है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 0। दुनिया जानती है कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 2r कोसाइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, यहाँ से अगर मैं r कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं r कॉमन निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएगा r माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से या तो r 0 के बराबर है या r माइनस 2 कॉस थीटा 0 के बराबर है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर मैं इधर ले तो 2 कॉस थीटा। दो इक्वेशन निकलेंगे, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो मतलब पोलर इक्वेशन में सेम इस चीज़ को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, जो ये वाली इक्वेशन है इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये वाली इक्वेशन इसी के अंदर आ गई। अगर मैं थीटा को, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं थीटा को पाई बाय 2 लिख दूँ, पाई बाय 2 का मतलब कॉस पाई बाय 2, कॉस 90 डिग्रीज 0, तो ये वापस आई है। तो मतलब इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, हम केवल इससे हम शो कर सकते हैं r इक्वल्स टू 2 कोसाइन थीटा। तो चाहे मैं पोलर में ऐसे लिखूं या कोऑर्डिनेट इसमें रेक्टेंगुलर में ऐसे लिखूं, दोनों की जो शेप बनेगी ना ग्राफ पे वो एग्जैक्टली सेम बनेगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको, सब इक्वेशन से ग्राफ बना के दिखाऊंगा, इसका भी और इसका भी ग्राफ बना के दिखाऊंगा। दोनों की जो जो शेप होगी वो एग्जैक्टली सेम होगी। चलिए अब मूव ऑन करते हैं। अभी तो हमने देखा फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर, अब हम देखते हैं पोलर टू रेक्टेंगुलर। देखो, पोलर को रेक्टेंगुलर कन्वर्ट में करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे या इक्वेशन जो बेसिकली हम लिखने वाले, आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये यूज करेंगे, या फिर आर कॉस थीटा अगर कहीं होगा तो उसको हम लिख देंगे क्या एक्स, और अगर आर साइन थीटा कहीं होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे वाई। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन इक्वेशन जो हम यूज़ करने वाले हैं। बट बिफोर यूजिंग दिस इक्वेशंस, हम जो गिवन इक्वेशन होगी जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगी उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं। चेंजेस करने पड़ सकते हैं मतलब हो सकता है हमें दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़े, या कुछ आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़े, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, या हमें कुछ टेंजेंट थीटा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़े, डिवाइड करना पड़े, कुछ थोड़ा बहुत उसको इधर उधर करके तब हम ये इक्वेशन हम यूज़ कर पाएंगे। डायरेक्टली हम ना कर पाएंगे, कहीं कर भी लें, कुछ इक्वेशन सिंपल है तो हम कर भी लें, बट ज़्यादातर में हम नहीं कर पाएंगे। कुछ हमें पहले इक्वेशन को चेंज, जो हमें रेक्टेंगुलर के फॉर्म में जो इक्वेशन दी गई हैं उसको हम थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। चेंजेस क्या, कभी स्क्वायर करना पड़े दोनों साइड, कभी कुछ आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एंड देन विल यूज़ दिस इक्वेशंस। तो ये तो बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब दो चार एग्जांपल हम लेंगे तो आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो इक्वेशन दे रखी है इन द पोलर, यहाँ पे r इज 5, थीटा इज पाई बाय 4, दो अलग अलग हैं। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है टू द रेक्टेंगुलर इक्वेशंस। कैसे करेंगे, एक काम करो, इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। और अभी हमने जस्ट देखा कि r स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो यार। अच्छा, 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा, एज इट इज रख लो, या 25 लिखना चाहो तो 25 भी लिख सकते हो। तो कन्वर्ट हो गई टू द रेक्टेंगुलर। सेम दिस थिंग वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट। ना अगर मैं टेंजेंट लूँ दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट पाई बाय 4। करेक्ट। तो जो टेंजेंट थीटा है ये एक्चुअल में क्या होता है, वाई ओवर एक्स होता है, पढ़ा था हमने। और टेंजेंट पाई बाय 4 क्या होता है, 1, एग्जैक्टली 1। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल्स टू x। तो ये हो गई रेक्टेंगुलर में, ये हो गया रेक्टेंगुलर में फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर। दो एग्जांपल और लेते हैं। सो ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है इन द पोलर्स, इक्वेशंस हमें दे रखी है, हमें कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर इक्वेशन से। ओके, कर देते हैं। तो r इज इक्वल्स टू 3। अच्छा, कोसिकेन थीटा है, कोसिकेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो क्या मैं इसको 3 डिवाइड बाय साइन थीटा ना लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो r साइन थीटा इक्वल्स टू 3 आ गया।
दुनिया जानती है कि आर साइन थीटा क्या होता है, एक्स नहीं वाई। तो वाई कितना आ गया, 3, करेक्ट। ओके, यहाँ पे r इक्वल्स टू -6 कोसाइन थीटा है। सो व्हाट विल गोइंग टू डू, थिंग्स आर प्रीटी सिंपल नाउ। वी नो दैट डू वन थिंग, हम डायरेक्टली हम यहाँ पे कुछ यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना r cos थीटा है ना r sin थीटा है ना टेंजेंट थीटा। तो आपको कुछ चीजें, मैंने कहा था ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करो, दोनों तरफ r से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी r से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी r से मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6r कोसाइन थीटा, राइट। नेक्स्ट r स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड r कोसाइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, y नहीं x। तो -6x। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, r कोसाइन थीटा इज x नॉट y। तो 6x और -6x हो गया। तो यहां से अगर मैं रीअरेंज करूं तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ना अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब एक्चुअली दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमें नजर नहीं आ रही है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल तो हमने ये पढ़ी थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये चीज हमने देखी थी। बट ये इक्वेशन भी सर्कल की ही है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। डू वन थिंग, विल यूज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, शायद आपने पढ़ा हो। क्या करना है, ऐड करो +9 हेयर एंड हेयर बोथ साइड। मतलब +9 ही क्यों, वो इसलिए क्योंकि जो ये 6x है ना, इसका अगर आप आधा लो, मतलब इसको हाफ करो, 6 को हाफ करो तो 3 आया, 3 का स्क्वायर करो तो 9। तो वो मैंने ऐड किया दोनों तरफ। तो अब एक्चुअल में होगा क्या इसका फायदा, विल सी राइट नाउ। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ये है हमारे पास। नाउ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो यार, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेना, यही आएगा, प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब वो इक्वेशन आई कि नहीं, यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो गई, -3 हो गया, और k की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, और रेडियस जो है वो 3 हो गया, क्योंकि 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये वापस ये सर्कल की इक्वेशन ही थी। सो आप चाहते तो आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट इन अ मोर परफेक्ट वे यू शुड कीप इन माइंड कि आप कुछ चीज़ें और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए आप यहाँ तक अगर आप लेके आते हैं, दैट वुड बी बेटर और बेस्ट। सो विद दिस मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ये पोलर एक्सिस, और पूरा एक बेसिक ओवरव्यू देखा। देन पोलर कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ के ऊपर, वो हमने देखा। देन हमने देखा कि एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट तरीके हैं, डिस्कस दैट थिंग। देन वी सो द कनेक्शन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, कनेक्शन देखा। देन वी डिस्कस्ड व्हाट, फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर टू पोलर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट हमें अगर दे रखे हो तो वो हमने देखा। उसके बाद हमने पोलर इक्वेशन टू रेक्टेंगुलर इक्वेशन एंड देन रेक्टेंगुलर इक्वेशन टू पोलर इक्वेशंस। तो ये चीज़ें हमने पूरा इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको बहुत कुछ नया समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इमेज दिखाई थी बटरफ्लाइज की, वो चीज़ हम ईजिली बाय यूजिंग द पोलर इक्वेशन हम उसको प्लॉट कर सकते हैं। ये चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड goodbye.